બે તબક્કામાં યોજાનારા બજેટ સત્રની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું આ પ્રથમ સત્ર છે। સામે મોદી સરકાર 2.0નું આ 10મું અને અંતિમ સંપૂર્ણ બજેટ છે। વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતાથી લઈને રાજનૈતિક દ્રષ્ટિએ 2023-24નું આ બજેટ સૌથી વિશેષ છે। સામાન્ય બજેટમાં શું હશે વિશેષ, તેના પરથી પડદો હવે થોડા જ કલાકોમાં ઉંચકાવા જઈ રહ્યો છે। પણ એ પહેલા આમથી લઈને ખાસ, નોકરિયાતથી લઈને વેપારી અને રાજકીય પાર્ટીઓને આ બજેટથી શું છે આશા, અપેક્ષા, એ જાણવું પણ એટલું જ જરૂરી છે। एक महत्वपूर्ण अवसर है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है। भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है। और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है। भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। सब लोगों को साथ में लेकर अधिवेशन चलाएंगे, ऐसा हमने तय किया है। इसलिए आज हम लोग राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं कि सरकार को सामने आके जवाब देना होगा। तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના અભિભાષણ સાથે જ બે તબક્કામાં રજૂ થનારા બજેટ સત્રની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। બજેટ સત્રનો પ્રથમ તબક્કો 31 જાન્યુઆરીથી 13 ફેબ્રુઆરી સુધી યોજાશે, જ્યારે બીજો તબક્કો 13 માર્ચથી 6 એપ્રિલ સુધી યોજાશે। આવનારા એક વર્ષમાં દેશના આર્થિક વિકાસને કેટલો બૂસ્ટર ડોઝ મળશે તેના અંદાજાનું એલાન પણ થઈ ગયું છે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે મંગળવારે બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે આર્થિક સર્વે રજૂ કર્યો, જેમાં વર્ષ 2023-24માં ભારતનો વિકાસ દર 6%થી 6.8%ની વચ્ચે રહેવાનો અંદાજ લગાવાયો છે। મહત્વનું છે કે આ છેલ્લા 3 વર્ષમાં સૌથી ધીમો ગ્રોથ હશે, જ્યારે નોમિનલ જીડીપીનો અંદાજ 11% લગાવવામાં આવ્યો છે। નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે રિયલ જીડીપીનો અંદાજ 7% છે। છેલ્લા 7 વર્ષ દરમિયાન દેશના વિકાસ દરની જો વાત કરીએ તો વર્ષ 2016-17માં વિકાસ દર 8.2% હતો, જે વર્ષ 2017-18માં ઘટીને 6.8% હતો। વર્ષ 2018-19માં તે ઘટીને 6.5% આવી ગયો। વર્ષ 2019-20 કે જ્યારે કોરોનાની દેશમાં શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે વિકાસ દર રહ્યો માત્ર 4%। વર્ષ 2020-21 કે જ્યારે કોરોનાની ગંભીર અસરોમાંથી દેશ પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે વિકાસ દર -7.3 પહોંચ્યો। પણ વર્ષ 2021-22માં ફરી પાછી વિકાસ દરની ગાડીએ ગતિ પકડી અને 8.7%એ પહોંચ્યો। વર્ષ 2022-23માં 8%થી 8.5% વિકાસ દર રહેવાનો અંદાજો છે અને વર્ષ 2023-24માં 6.8% રહેવાનો અંદાજો છે। આર્થિક સર્વે મુજબ પરચેઝિંગ પાવર પેરિટી એટલે કે પીપીપી મામલે ભારત દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા છે અને એક્સચેન્જ રેટ મામલે 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા। સાથે જ આર્થિક સર્વેમાં દાવો કરાયો છે કે ભારત દુનિયામાં સૌથી ઝડપથી વિકસિત મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા બની રહી છે। વર્ષ 2023ને લઈને આઈએમએફ દ્વારા વિવિધ દેશના વિકાસનું જે અનુમાન લગાવાયું છે તેની હવે વાત કરીએ તો
ભારત 6.1% વિકાસ દર સાથે સર્વોચ્ચ સ્થાને છે, જ્યારે બીજા નંબર પર 5.2% સાથે ચીન છે. ત્યારબાદ 1.8% સાથે જાપાન, 1.4% વિકાસ દર સાથે અમેરિકા ચોથા નંબર પર છે, તો પાંચમા નંબર પર બ્રિટનનો વિકાસ દર -0.6% રહેવાનો IMFનો અંદાજ છે. આ તો વાત થઈ દેશના વિકાસ દરની, પણ એ ટાર્ગેટ ત્યારે જ અચીવ થશે જ્યારે દેશની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત હશે. કોરોના બાદ દેશમાં નાના અને લઘુ ઉદ્યોગોની સ્થિતિ શું છે એ કોઈનાથી છૂપું નથી. સાથે જ બેરોજગારીમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, તો મોંઘવારીની રફતાર પણ યથાવત છે. આવા સમયે બજેટ ટાણે સામાન્ય જનતાને સરકાર પાસેથી આશા હોવી સ્વાભાવિક છે. ત્યારે સામાન્ય લોકોને આ બજેટથી શું આશા અપેક્ષા છે, પહેલા એ જોઈ લઈએ. આશા નંબર 1, ટેક્સમાં છૂટછાટ. આશા નંબર 2, મોંઘવારીથી રાહત. આશા નંબર 3, ગેસના ભાવ ઓછા થાય. આશા નંબર 4, મોંઘી લોનથી રાહત મળે. આશા નંબર 5, ખેડૂતોને વધુ સબસિડી મળે. આશા નંબર 6, રોજગારીની તકમાં વધારો થાય. આશા નંબર 7, એજ્યુકેશન લોન સસ્તી થાય. આશા નંબર 8, સરળ અને સારી સારવાર મળી રહે. આશા નંબર 9, મુસાફરી સસ્તી થાય. અને આશા નંબર 10, વયસ્ક નાગરિકોને आर्थिक मदद મળી રહે. कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा इकोनॉमिक बजट आए जिससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को काफ़ी बेनिफिट मिले. और कृषि क्षेत्र में भी सरकार का विशेष योगदान होना चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश है. इसमें कृषि के लिए अलग से बजट पेश करके किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले, हमारी सरकार से अपेक्षा है. बजट से मेरी यही आशा है कि जो अभी आप देख रहे हैं आम जनता में महंगाई को लेके बहुत आक्रोश है, क्योंकि हर चीज़ें के भाव जो बढ़ गए हैं. और हमको ये सोचने वाली बात है कि जनता महंगाई को लेकर इतनी आक्रोशित हो रही है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है. ठीक चल रहा है, लेकिन महंगाई का भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला है वो बहुत बढ़ा हुआ है. रिटेल महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, आम पब्लिक इसमें बहुत परेशान है. सरकार को इससे भी ध्यान में रखते हुए महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करके कुछ सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए. આ તો વાત થઈ સામાન્ય જનતાની આશાની, અપેક્ષાની. સ્વાભાવિક છે, આશાઓ ત્યારે જ પૂર્ણ થઈ શકે જ્યારે દેશની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત હોય, અને ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે દેશના ઉદ્યોગો મજબૂત હોય. ત્યારે વર્ષ 2023ના બજેટથી ઉદ્યોગ જગતને શું આશા અપેક્ષા છે, હવે એ પણ જોઈ લઈએ. देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि सब्सिडी पार्ट जो है वो कम से कम ग्रोअर को मिले, क्योंकि सर्वाइव हम तभी कर पाएंगे जब हमारे को सब्सिडीज़ खास तौर पे खाद पे मिलेगी, एंटी हेलनेट पे मिलेगी, आपकी पेस्टिसाइड्स पे मिलेगी, इंसेक्टिसाइड पे मिलेगी. तो हमारा तो केंद्र सरकार से यही मांग है कि बजट में कम से कम जो किसान है, जो मध्य वर्गीय किसान है, जिनकी सेब की जो औसत है वो 400 से लेकर 600 पेटियों तक की है या उससे कम की है, वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब सरकार उनकी मदद करेगी. जो छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योगों की तो बात ठीक है, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं उनको फाइनेंस की बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो गई है और किसी भी तरह का कोई भी बैंक उनको फाइनेंस अवेलेबल नहीं करा रहा है. जब भी बैंक में वो जाते हैं तो उनसे कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगी जाती है, जबकि जो लघु उद्योग हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहाँ से लाएंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक MSME क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहिए जो पिछले 3 साल के टर्नओवर को बेस करते हुए वो लागू कर सकते हैं. और उस क्रेडिट कार्ड से जब भी MSME को ज़रूरत हो तब वो धन उनको मुहैया हो जाए और जब उनका पेमेंट आए तब वो उस चीज़ को चुका दें. तो इस तरह का यदि कोई MSME क्रेडिट कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जिसकी बात काफ़ी पिछले 2 सालों से चल रही है, और केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनको भी हमने सबने पत्र लिखा है, तो अगर ये जारी हो जाता है तो निश्चित रूप से लघु उद्योगों में एक जान आ जाएगी.
है कि आप नई स्कीम लेके आइए, क्योंकि अभी $100 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट है और $250 बिलियन का डोमेस्टिक टेक्सटाइल का टारगेट है, जो हमें अगले 5 साल में अचीव करना है, जो मिनिस्ट्री ने दिया है। वो टारगेट अगर अचीव करना है तो कोई भी नई स्कीम चाहिए जिसमें, क्योंकि आज अगर टेक्सटाइल में आपको फैब्रिक चाहिए सबसे पहले, और फैब्रिक का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वीविंग इंडस्ट्री और निटिंग इंडस्ट्री से आता है, तो वीविंग इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव चाहिए। तो लास्ट 4 से 5 साल से बहुत ज़्यादा कटोकटी वाला माहौल है, व्यापार धंधा बिल्कुल भी नहीं है और मशीनरी की कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर से यही अपील है कि लास्ट ईयर जैसे सब्सिडी वगैरह का उन्होंने जो प्रावधान दिया था कि एम्ब्रॉयडरी यूनिट के लिए, तो वो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो उसको वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सब्सिडी के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। इसमें हमारा 2 मुद्दा है। पहले तो हम लोगों को एक डेवलपमेंट फंड की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि कोरोना के टाइम में दिया गया था। पूरा इंडस्ट्री अभी जो हम लोगों को 200 साल इस साल कंप्लीट होने जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को एक डेवलपमेंट फंड जरूर बैंकों से दिलाए, ताकि हम लोगों का मॉडर्नाइजेशन जो अभी तक टी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, मॉडर्नाइजेशन करना ज़रूरी है। यदि हम लोग मॉडर्नाइजेशन में नहीं जाएंगे तो इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव। दूसरा, हम लोगों का एक्सपोर्ट फंड के अंदर में ये कहना है कि एक्सपोर्ट हम लोगों का धीरे धीरे घटता जा रहा है। जब इंडिया का प्रोडक्शन 600 मिलियन था तब हम लोग 250 मिलियन एक्सपोर्ट करते थे। आज हमारा प्रोडक्शन 1400 मिलियन किलो के आसपास है, हम लोग 200 मिलियन किलो 220 मिलियन किलो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कॉमर्स मिनिस्ट्री और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री इस तरफ में बहुत ध्यान दे, और स्पेशली चाय का प्रमोशन देना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स के स्लैब खूब बहुत ही ज़्यादा है। इसमें भी अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड है तो 2 बार टैक्स लगते हैं। एक तो पहले आपकी कंपनी इनकम टैक्स देती है, इसके बाद जब प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयर होल्डर को डिविडेंड स्वरूप, तो उसको भी इनकम गिनी जाती है और उसके ऊपर दोबारा टैक्स लिया जाता है, जिसका भी स्लैब 10%, 20% या 30% है। इसके बावजूद अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है या 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो 10%, 20% या 37% तक सरचार्ज लिया जाता है। यानी कि कुल मिला के 57% इनकम टैक्स लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो कंपनी को इस बारे में राहत देनी चाहिए। सामान्य जनताથી લઈને નોકરિયાત, વેપારી, ઉદ્યોગપતિ, દેશનો એક પણ વ્યક્તિ એવો નથી કે જેને બજેટમાં કોઈ આશા કે અપેક્ષા ન હોય। જો કે સામે હકીકત એ પણ છે કે આ તમામ લોકોની દરેક આશા એક જ બજેટમાં પૂરી થવી શક્ય પણ ના હોઈ શકે, કેમ કે એક ઘર કે ઓફિસમાં પણ જો દરેક વ્યક્તિની આશા પૂરી ના થઈ શકતી હોય તો આ તો આખો દેશ છે, માટે આશાઓનું પ્રમાણ વધારે જ હોવાનું એ સ્વાભાવિક છે। ત્યારે 2023ના બજેટને લઈને સરકાર સામે ગણાતા મુખ્ય પડકારોની જો વાત કરીએ તો મોંઘવારી, બેરોજગારી, ટેક્સમાં સુધારો, ફુગાવો અને મહેસૂલી ખાધ છે। આ પડકારોને કેન્દ્રમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકાર 2023નું બજેટ જાહેર કરશે તેવું આર્થિક નિષ્ણાતોનું માનવું છે। સામે હકીકત એ પણ છે કે આ મોદી સરકાર 2.0નું 10મું અને અંતિમ સંપૂર્ણ બજેટ છે, કેમ કે વર્ષ 2024માં લોકસભાની ચૂંટણી છે। ત્યારે આ બજેટ દ્વારા સરકાર પાસે દેશની જનતાને રીઝવવાનો મોકો છે, સામે વિપક્ષ પાસે સરકારને ઘેરવાનો મોકો છે, અને એટલા માટે જ આ બજેટ હોબાળેદાર રહેવાના સંકેત પૂરેપૂરા છે, કેમ કે વિપક્ષે સરકારને ઘેરવાનો પ્લાન તૈયાર કરી દીધો છે। બજેટ સત્ર દરમિયાન વિપક્ષ મોંઘવારી, બેરોજગારી, ખેડૂતોની સ્થિતિ, અદાણી પર રિપોર્ટ, ચીનની ઘૂસણખોરી અને પીએમ મોદીને લઈ બીબીસીની ડોક્યુમેન્ટરીના મુદ્દા પર સરકારને ઘેરવાના મૂડમાં છે। જો કે બજેટના પ્રથમ દિવસથી જ વિપક્ષ લડાયક મૂડમાં જોવા મળી રહ્યું છે। વિપક્ષે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના અભિભાષણને લઈને પણ વાંધો ઉઠાવ્યો છે।
जो अभिभाषण हुआ है वो सरकार ने दिया हुआ जो स्पीच है उसी के पे बातचीत हुई है। इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, नारी शक्ति को लेकर बहुत उन्होंने 2-3 पैराग्राफ उसके बारे में पढ़े हैं। पर नारी शक्ति से मुझे याद आता है यही सरकार है जिन्होंने जो महिला आरक्षण बिल है उसको रोका हुआ है। ये वही सरकार है जो बुल्ली बाई सुली डील जैसे मामले आते हैं उस पर चुप रहती है। ये वही सरकार है जहाँ पे भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, उनके सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हो, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बजट्स होते हैं उसको कटौती कर रही है। सुरक्षा के बजट्स का मिसयूज हो रहा था महाराष्ट्र में, उसके बारे में बात नहीं करती है। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे थे। मुझे तो लगा कि इलेक्शन से पहले जो लास्ट बजट आ रहा है, फुल बजट आ रहा है, उसके बारे में प्रेसिडेंट से कहलवाया है। वो सिर्फ हम अकेले के बात नहीं है, सबको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि एक भारत का महिला आदिवासी राष्ट्रपति ने जितना देश के सामने में आज उल्लेख किया अपने उद्बोधन में, वो तो सबको इससे गर्व महसूस होना चाहिए। वो तो कोई पार्टी, कोई राजनीति का बात ही नहीं है, सबको। काश उनकी कही गई बातें सच भी होती। राष्ट्रपति के अभिभाषण को जब आप 1952 से लेकर के अब तक देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे ये सरकार के स्तुति गान में तब्दील हो रहा है। इसमें इलेक्शन स्पीच किया था, हमने तो कोई नई बात कही नहीं। जो योजनाएं चल रही हैं उसी के बारे में जो है राष्ट्रपति महोदया रिइटरेट करती रही। हमने क्या किया है पिछले 8-9 साल में, उसका लेखा जोखा दिया। यदि इलेक्शन स्पीच होता राष्ट्रपति, मतलब इनको जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में कोई परवाह ही नहीं है। यदि इलेक्शन स्पीच होता तो यहाँ घोषणा होती ना कि हम ये करने वाले, हम ये करने वाले, हम ये करने वाले हैं। इस तरह का तो कुछ है नहीं। और कौन सी ऐसी योजना राष्ट्रपति महोदया के स्पीच में है या कौन सी ऐसी योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया जो काम नहीं हो गया है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन के पास कोई चीज़ नहीं है और अपोजिशन अपना जो है वो दिमाग शून्यता की स्थिति में है। और उनको अब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कमेंट कर रहा है, कोई राष्ट्रपति महोदया के ऊपर कमेंट कर रहा है, कोई वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कर रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इमरजेंसी की जो मानसिकता है कांग्रेस की, उससे उबर नहीं पाई। ટૂંકમાં કહીએ તો બજેટ સત્રને લઈને એક તરફ રાજનીતિ ચરમ પર છે, તો બીજી તરફ બજેટને લઈને દેશવાસીઓની આશા પણ અનેક છે। અત્યારે આ બજેટ સત્રમાં કોની અને કેટલી આશા પૂર્ણ થાય છે અને 2024ની ચૂંટણી પહેલાનું આ બજેટ કોને રાજકીય લાભ આપનારું સાબિત થાય છે, આ સવાલોના જવાબ માટે હવે લાંબો સમય રાહ નહીં જોવી પડે, કેમ કે સત્ર ચાલુ થઈ ગયું છે। રાજકીય શોર પણ આસમાને છે અને બજેટની જાહેરાતને પણ વાર નથી। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ।